Hello everyone. In marketing management practice, today we are going to discuss on types of product innovation. In last lecture, in last video, we have discussed about product innovation, the benefits and the challenges we are facing in product innovation. Today we are going to discuss of types of product innovation. In product innovation, there is a concept of making necessary changes in existing product, right? We innovate something which already existed or we found something new. Generally, these changes are made after considering new technology, expectations of customers and marketing environment. We see the customers need the basis of production, technology, the demand of the product, uh, competition. We are seeing many factors, and then we decide to to do innovation or to apply innovation in our existing product, or we plan for some new product. So basically, there are 5 types of product innovations. We'll see it one by one. First type of product innovation is product development. Second is product simplification. Third is product enrichment. Fourth is product diversification. And fifth is new product, new production. New product productions means production of new product. We'll look into it individually. Okay. So first we will discuss about product development. Number one, to bring changes as per customer suggestions and complaints and make a new product with those changes is called product development. Means if customer are if customers are wanting something else, they want to apply or they want to use something different, so they will suggest the company that okay, I'll need some new features in this product, so please imply this. Sometimes product is not working properly, or their design, their shape is not proper. Sometimes the utilization of the product is faulty. So many times many customers are very concerned about it, and they complain about the faults, about the problems, or about the challenges of product, and they complain to the company that okay, this is not working out properly, so please change it. So according to the suggestions and the complaints of customers, the company is doing changes in the product, and they try to make new product. That is called product development. Means company is developing the feature of the products. Okay. Basically, the product development is based on many factors. If we look the factors, that many times not only the suggestions and the complaints is playing important role for the product development, but competitor companies are applying something new in the product, so we also must apply this. We have seen many things that one company has launched something new, or they developed their product, then in competition we also have to apply this. Even when the technology changes, right now we are seeing the best example of the technology changes. Earlier we are taking the lectures in the classroom, and you are sitting in front of us, so it will be very easy, it would be very easier to communicate with you all, and the lectures will would be also more effective in classroom sessions. But right now in the pandemic situation, we are facing many challenges that we cannot use classroom teaching, so we have to apply
something new technology, and we have to be ready with the new technology. And right now, if we are taking these lectures online and we are posting this online lecture on YouTube, and you are seeing or you are watching the videos of lectures, and then you are studying, so this is also one of the best example right now is product development, because teaching here, the teaching is one kind of service, and we are developing the service sector. Why? Because the technology is changes. Right now the technology has changed, and even the situation is also demanding the development. So we cannot sit in one corner and wait for the situation will get over, and then we will go to the classroom, and then we will restart the teaching and learning process. This is not possible. So we are applying these technologies in this teaching also, and this is also one kind of product development. Many time fashion changes, many things, many products are so much concerned and so much connected with the fashion. So many times the fashion will change, and we have to bring that changes in our product also according to the fashion. Clear? सो बेसिकली अगर आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है, कि कोई कस्टमर है जिसको प्रोडक्ट में वेरिएशन चाहिए, उसमें थोड़े चेंजेस चाहिए, तो वो सजेशन देता है कंपनी को या कंप्लेन करता है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि कंपटीशन चल रही है मार्केट के अंदर, या फिर टेक्नोलॉजी की डिमांड है, फैशन चेंज हो जाती है, तो उस हिसाब से भी हमें अपनी प्रोडक्ट के अंदर कुछ कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं और नई प्रोडक्ट बनानी पड़ती है, और फिर हमें कस्टमर को वो सर्व करनी पड़ती है। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल भी दिया कि अभी हम जो ये ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं, तो वो भी एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट का ही एग्जांपल है, वो सर्विस सेक्टर के अंदर माना जाता है। क्योंकि पहले क्लासरूम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता था, तो वो बहुत डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो पाता था, एंड वो हमारे लिए बहुत इजी था। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, सिचुएशन चेंज हो गई है, तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हमें अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी चेंजेस लाने पड़ रहे हैं, ना इस तरह से हमें लेक्चर्स कंडक्ट करने पड़ रहे हैं। तो वो भी एक एग्जांपल है अभी के दौर का कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना जरूरी है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स नीड, customer suggestion and customer complaints. So this is called product development. We see some examples of product development. That is, McDonald's is always with the fast food industry but frequently markets new burgers. अभी मैकडोनल्ड्स ने बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे उन्होंने यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए क्या किया कि भाई चलो 25 रुपीज की आलू टिक्की लॉन्च कर दी। सो बजट में आ जाता है, दे कैन हैव सीट, दे कैन हैव प्रॉपर स्पेस, टाइम, एंड दे एंजॉय द फूड एज वेल। सो ये क्या है, मैकडोनल्ड्स हमेशा फास्ट फूड इंडस्ट्री में तो था ही, लेकिन वो क्या कर रहा है, इस तरीके की प्रोडक्ट डेवलप कर रहा है जिससे वो कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई कर सके। देन द सेकंड एग्जांपल इज ऑफ one leading company, that is Coca-Cola. Coca-Cola is also developed new product for its existing market, जैसे डाइट कोक है, वेनिला कोक है, जिंजर कोक है। तो कोका कोला तो पहले भी आती थी, लेकिन अभी क्या है, लोग डाइटिंग पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो कोका कोला ने डाइट कोक भी इंट्रोड्यूस कर दिया मार्केट के अंदर। उसने फ्लेवर चेंजेस करने शुरू कर दिए, जिंजर कोक भी ला दी। तो वो दैट इज द एग्जांपल ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। वो किस लिए कर रहा है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा है, कस्टमर्स की डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहा है। फिर हम सब जानते हैं कि गूगल ने क्रोम डेवलप करके बहुत इजी इंटरनेट यूज कर दिया है। अगर अभी के बारे में देखें तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी है कि जिसने मतलब जैसे जूम है, तो उसने ऑनलाइन जो मीटिंग्स कंडक्ट करना शुरू कर रहा है, तो फिर गूगल भी पीछे नहीं रहा है, उसने भी प्रोडक्ट डेवलप कर दिया, गूगल मीट हैज लॉन्च। सो ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स वी आर सीइंग इन डे टू डे लाइफ कि कंपनी जो है वो अपनी प्रोडक्ट को डेवलप करके मार्केट में लॉन्च कर रही है। विल सी द सेकंड type of product innovation is product simplification. Now product simplification is what? Sometimes management tries to divert their investment towards the profit making product by closing the non profitable business. By decreasing the product line, organization becomes simple and total profitability increases.
See, sometimes every company need profit, right? So many times what happens that company is a company has launched many products. They have many very huge product line, and sometimes some products are not working out. They will not get enough profit, even they cannot recover their cost as well. So in that cases, what the company do, that they stop producing the non-profitable business, or stop doing the non-profitable business, and they will focus on the profitable business only, profitable product only. So in that is called product simplification. If we see the definition, that simplification means closing down sales or production of unnecessary or non-profitable products, or make changes in that products by removing some process. इसका मतलब ये होता है कि कई बार कंपनी जो है, जो कंपनी का मेन मोटो होता है प्रॉफिट कमाना। अगर कंपनी को कुछ प्रोडक्ट ऐसी है कि जो कंपनी को प्रॉफिट नहीं कमा के दे रही है, उल्टा उसको उससे लॉस मिल रहा है, तो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि कंपनी अपनी जो लॉस मेकिंग जो प्रोडक्ट है या लॉस मेकिंग जो बिजनेस है उसको बंद कर देती है। उसको बंद करके वो उसी पे फोकस करती है जो प्रोडक्ट या जो बिजनेस उसको क्या दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है। ये तभी पॉसिबल हो जाता है जब कंपनी के पास अच्छी खासी प्रोडक्ट लाइन है, तो क्या वो चेंज कर सकता है। एक प्रोडक्ट का जो पूरा आउटपुट है, वो प्रोडक्शन और उसका सेल्स सब कुछ बंद करके सिर्फ नेसेसरी जो है या जो प्रॉफिटेबल है प्रोडक्ट, उसी पे वो फोकस करता है। तो इस तरीके की पॉसिबिलिटीज हो सकती है जब कंपनी के पास बड़ी प्रोडक्ट लाइन अवेलेबल हो। मैं आपको एक एग्जांपल इसका दूं तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिसने अपनी कुछ कुछ प्रोडक्ट को स्टॉप कर दिया। तो ऐसे अगर एक एग्जांपल देखें तो एंकर कंपनी है, जो मेन इलेक्ट्रिकल्स आइटम्स उसकी ज्यादा अच्छी बिक रही थी, लेकिन वो एफएमसीजी मार्केट के अंदर भी एंटर हो जाती है, एंड दे आर ट्राइंग टू सेल ब्यूटी सोप्स। डायना सोप वो सेल करती थी, एंकर टूथपेस्ट भी सेल करती थी। तो अभी टूथपेस्ट की जो मार्केट है उसके अंदर एंकर इतना चली नहीं, तो उसने क्या किया कि वो एफएमसीजी जो प्रोडक्ट वो बना रही थी, तो उसने उसको स्टॉप कर दिया, एंड देन दे विल ओनली फोकस ऑन द इलेक्ट्रिकल्स थिंग्स। तो इस तरीके से जो भी कंपनी अपनी लॉस मेकिंग या अननेसेसरी है, जो आपको कोई प्रॉफिट कमाने में हेल्प नहीं कर रही है, उस चीज को, उस प्रोडक्ट को वो क्या कर रही है, बंद कर देती है, और उसी प्रोडक्ट पे फोकस करती है या उसी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन और सेल पे फोकस करती है, जिससे उसको प्रॉफिट मिल रहा है। नंबर 3 is product enrichment. The process of making new product is more attractive is called product enrichment. When customers give more preference to quality product than its price, in that case the strategy of product enrichment becomes successful. Customers who are literate and economically well are expecting product enrichment. हम प्रोडक्ट एनरिचमेंट में थोड़ा आगे बात करें, इससे पहले हमने को ये भी जानना जरूरी था कि प्रोडक्ट सिंप्लीफिकेशन जो है उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ कंपनी को नहीं होता है, लेकिन कंपनी के साथ साथ वो ट्रेडर्स और कस्टमर्स को भी बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। अगर हम प्रोडक्ट एनरिचमेंट की बात कर रहे हैं, देन वी हैव टू सी दैट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग न्यू प्रोडक्ट मोर अट्रैक्टिव। कभी कभी अच्छे शेप में जब कोई चीज परोसी जाती है, दी जाती है, तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। जैसे मैं आपको बात करूं तो कैडबरी सेलिब्रेशंस, राइट? अभी जैसे राखी गई, तो ये जब लॉन्च हुआ था दिवाली टाइम पे, कैडबरी सेलिब्रेशन बहुत साल पहले लॉन्च हुआ था। तो पहले मिठाई देने का एक रिवाज चलता था, फिर कैडबरीज ने एक वही अपनी ही प्रोडक्ट को अच्छे से सजा के देना शुरू कर दिया, तो वो बन गया कैडबरी सेलिब्रेशंस। तो वो क्या होता था कि भाई दिवाली है तो कैडबरी सेलिब्रेशन लाओ, राखी है तो राखी स्पेशल कैडबरी सेलिब्रेशन की बहुत अच्छी सी एडवर्टाइजमेंट होती थी। इसके बाद अभी कुछ 2-3 सालों से हम लोग अगर आप
देख रहे हो तो कैडबरी मिठाई पे से हम लोग चॉकलेट्स पे आए थे, अब चॉकलेट्स पे से लोग आलमंड्स पे भी आ गए हैं। अब वो भी एक क्लासी लुक दे रहा है कि भाई चलो आलमंड्स या ड्राई फ्रूट्स को भी बहुत अच्छे से बॉक्स में सजा देते हैं एंड दे विल यूज फॉर गिफ्ट हैम्पर्स एंड ऑल। सो बेसिकली क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट जो है उसको हम ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट एनरिचमेंट। कभी कभी इसमें नॉट एवरी टाइम मेनली हर बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट एनरिचमेंट में कस्टमर जो है वो प्राइस को नहीं देख रहा है, वो उसकी क्वालिटी को देख रहा है। क्योंकि प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो प्रोडक्ट एनरिचमेंट विल ऑलवेज डिमांड अ ह्यूज प्राइस, अ हाई प्राइस इन कंपैरिजन टू द अदर प्रोडक्ट्स। अगर कंपनी एनरिचमेंट प्रोवाइड कर रही है तो वो ज्यादा प्राइस डिमांड करेगी ही करेगी। लेकिन अगर कस्टमर का पूरा मार्केट ऐसा है कि जो प्राइस नहीं देख रहा है बट क्वालिटी देख रहा है तो उस मार्केट के अंदर प्रोडक्ट एनरिचमेंट बहुत सक्सेसफुल हो जाता है। स्पेशली ऐसा माना जाता है कि जो भी कस्टमर्स जो लिटरेट है, पढ़े लिखे हैं, स्टेटस वाले हैं, इकोनॉमिकली बहुत साउंड है, तो जैसे हाई क्लास सोसाइटी होती है या जिसका स्टेटस थोड़ा अच्छा होता है तो वो लोग जनरली प्रोडक्ट एनरिचमेंट ज्यादा प्रीफर करते हैं। अगर हम प्रोडक्ट एनरिचमेंट की बात करें तो वो सबसे ज्यादा बेस उसका रखता है कि कितने ऐसे रीच कस्टमर्स हमारे पास अवेलेबल है, हमारी प्रोडक्ट के मार्केट में कितने रीच कस्टमर्स हमारे पास अवेलेबल है वो हमें देखना जरूरी हो जाता है। फिर हमें अगर प्रोडक्ट एनरिचमेंट करना है तो हमें कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम हाई प्राइस तो चार्ज कर रहे हैं लेकिन हमारे सामने भी तो खर्चा हो रहा है ना। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना जाएगा, हमें जो प्रोवाइड करना है एनरिचमेंट, जो एक्स्ट्रा पार्ट उसको प्रोवाइड करने हैं, उसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो हमें अवेलेबल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, दैट इज आल्सो वी हैव टू लुक इनटू इट। दूसरी सबसे अहम बात ये है कि हम प्रोडक्ट एनरिचमेंट प्रोवाइड तो करना चाहते हैं, एज अ कंपनी वी वांट टू प्रोवाइड द प्रोडक्ट एनरिचमेंट, बट डू वी हैव अ स्टाफ? इट इज नॉट रिलेटेड टू ओनली स्टाफ बट डू वी हैव अ स्किल्ड स्टाफ। क्योंकि आपके पास स्टाफ कितना है इट डजंट मैटर, बट आपके पास स्किल्ड स्टाफ कितना है, कौन से ऐसे वर्कर्स है जो बहुत अच्छे स्किल्ड वाले हैं जिसकी वजह से हम जिनके स्किल का यूटिलाइजेशन करके प्रोडक्ट को एनरिच कर सकते हैं, तो वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर जो टेक्नोलॉजी चेंज होती है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होगी हमें एनरिच करना ही पड़ेगा। फिर फैशन चेंज होता है उस हिसाब से भी हमें चेंज करना पड़ता है। तो इस तरीके से हमें प्रोडक्ट एनरिचमेंट को यूटिलाइज करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा हमारे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो हम देख सकते हैं कि फास्ट ट्रेड एंड इवन टाइटन। तो आप टाइटन को देखोगे तो टाइटन की जो वॉच होती है, अगर आप नॉर्मली मिडिल क्लास फैमिली वाले भी अगर टाइटन वॉच खरीदना चाहते हैं तो भी वो एक 2000 के अंदर भी एक छोटा सा कोई मॉडल वो लोग खरीद सकते हैं। लेकिन जो हाई प्रोफाइल्स लोग होते हैं जिनको टाइटन चाहिए, तो टाइटन ने क्या किया, अपनी प्रोडक्ट को एनरिच करने के लिए उसने एक नया मॉडल लॉन्च किया, दैट इज कॉल्ड टाइटन रागा। तो वो टाइटन रागा की वॉच ऐसी होती है कि उसकी स्टार्टिंग रेंज ही 50,000 1 लाख से शुरू हो जाती है। तो सेम प्रोडक्ट सेम कंपनी जो है वो अपने प्रोडक्ट को एनरिच करके अलग कस्टमर्स के लिए वो यूटिलाइज कर सकती है। इस तरीके के जो भी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च होते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट एनरिचमेंट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं दैट इज प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। नाउ प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन मीन्स मॉडर्न एज इज एन एज ऑफ चेंजेस। अभी हम देख रहे हैं कि हर रोज सब कुछ बदल रहा है मार्केट के अंदर, हमको वही पुरानी चीज बहुत मुश्किल से मिलती है। एक चीज हमने आज खरीदी है उसमें कल दूसरे नए नए चेंजेस आ जाते हैं। तो चेंजेस इज राइट नाउ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ मॉडर्न एज। So today's new product becomes out of fashion tomorrow. आज की हमने न्यू प्रोडक्ट बनाई वो कल आउट ऑफ फैशन हो जाती है। The management has to make changes in its decision to meet with the changing situation. मैनेजमेंट को हमेशा अपने डिसीजन को चेंज करना पड़ता रहेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती है वैसे वैसे उसको डिसीजंस भी चेंज करने पड़ेंगे।
Study of diversification of production becomes essential as a system changes in product mix. प्रोडक्ट मिक्स के अंदर प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन को स्टडी करना सबसे ज्यादा जरूरी है. मेनली अगर हम बात करें प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन की, तो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन मीन्स एक्सपांशन ऑफ प्रोडक्ट लाइन और बाय एडिंग न्यू प्रोडक्ट्स और मेकिंग चेंज इन ओल्ड प्रोडक्ट्स. जो डाइवर्सिफिकेशन होता है उसको हम ये बोलते हैं कि कोई भी जो प्रोडक्ट है उसको उसके अंदर हमको वैरायटी प्रोवाइड करनी है, उसको प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं. जैसे अगर हम अभी की बात करें तो कॉस्मेटिक्स के अंदर बहुत प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन हमें देखने मिलता है. जैसे एक हिमालय का ही शैम्पू अगर हम लेते हैं तो हिमालय का शैम्पू अलग 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 रेंज में मिल रहा है. उसकी बहुत अच्छी प्रोडक्ट लाइन है. जैसे अगर हम बात करें तो हेयर फॉल के लिए अलग शैम्पू है, फिर स्मूथिंग के लिए अलग शैम्पू है, फिर ड्राई स्कल्प के लिए अलग शैम्पू है, ऑयली स्कल्प के लिए अलग शैम्पू है. वैसे ही अगर हम उसके फेस वॉशेस की बात करें तो ऑयली स्किन के लिए अलग शैम्पू अलग फेस वॉश है, ड्राई स्किन के लिए अलग है, नॉर्मल स्किन के लिए अलग है. अलग अलग फ्लेवर के हैं, नीम फ्लेवर आएगा, फिर केसर फ्लेवर आएगा, फिर ये अलग 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 इतने सारे फ्लेवर्स अवेलेबल होते हैं कि हम लोग कई बार तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर ये ही प्रोडक्ट लेनी है लेकिन कौन सा वाला फ्लेवर ले. तो एक ही प्रोडक्ट लाइन के अंदर हम अलग अलग उसके शेप में, उसके डिजाइन में, उसके फ्लेवर में जो भी हम चेंजेस उसको दे रहे हैं कस्टमर को, तो कस्टमर को हम क्या कर रहे हैं, डाइवर्सिफाइड कर रहे हैं कि हम डाइवर्सिफिकेशन उसको प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई तुम्हें जिस तरीके की जरूरत है उस तरीके का तुम यूटिलाइजेशन कर सकते हो. अगर तुम्हें हेयर फॉल की प्रॉब्लम रह रही है तो तुम ये वाला शैम्पू और कंडीशनर यूज करो. अगर तुम्हें पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो तुम ये वाला फेस वॉश यूज करो. तो डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कंपनी आजकल, तो दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन. और हम लोगों ने अभी आई गेस उसके एग्जांपल्स भी डिस्कस कर ही लिए हैं. जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये हिमालय इज जस्ट वन एग्जांपल. उसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. जैसे आईटीसी ने पहले बॉडी शॉप लॉन्च किया था, बॉडी वॉश भी लॉन्च किया है. बॉडी वॉश भी अलग अलग फ्लेवर में है. अब अभी रिसेंट की अगर हम सिचुएशन की बात करें तो हैंड वॉशेस, बहुत सारे अलग 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 टाइप के हैंड वॉशेस अवेलेबल है मार्केट में. अलग अलग फ्लेवर के हैंड वॉशेस है, फिर हर्बल हैंड वॉशेस है, फिर ऑर्गेनिक हैंड वॉशेस है. उसमें भी अलग अलग फ्लेवर है. कौन सी तुम्हारे स्किन को रफ कर रहा है, कौन सी तुम्हारी स्किन को रफ नहीं कर पा रहा है, तो वो सब भी वो प्रोवाइड कर रहे हैं. तो दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज न्यू प्रोडक्ट. कोई भी हम नई प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड न्यू प्रोडक्ट. Lots of ideas being generated about the new product. Out of these ideas, many ideas are being implemented. The ideas are generated in many forms and their generating places are also various. अगर हम बात करें न्यू प्रोडक्ट की तो हम देख रहे हैं कि कोई भी न्यू प्रोडक्ट है वो एक आइडिया से पैदा होती है, राइट. वो आइडिया की एड भी बहुत अच्छी आती थी कि एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया. वैसे ही होता है कि प्रोडक्ट का जो भी हम इनोवेशन देखते हैं तो हर इनोवेशन प्रोडक्ट आइडिया जो है उसका ही वो रिजल्ट है. तो बहुत सारे आइडियाज जनरेट होते हैं नए प्रोडक्ट के लिए. उसमें से कई आइडियाज जो है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तब जाके एक नई प्रोडक्ट बनती है. और वो भी आइडियाज जो है वो अलग अलग फॉर्म्स के अंदर जनरेट हो जाते हैं, अलग अलग प्लेसेस में जनरेट हो जाते हैं. फिर हमें ध्यान में देना पड़ता है कि हमारे कस्टमर्स में ये चलेगा या नहीं चलेगा, कस्टमर्स डिमांड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. फिर कंपटीटर्स को भी देखना पड़ता है. फिर अगर मान लो कि वो कोई हमारी जो प्रोडक्ट है वो उसकी नीड जो है वो कस्टमर की नीड पूरी नहीं हो रही है, मतलब अनसेटिस्फाइड नीड्स है. जैसे अभी बारिश में चले तो वाटरप्रूफ वॉचेस चाहिए हमको. फिर टीवी के अंदर अभी देखो कि स्मार्ट टीवी की जरूरत पड़ रही है हमें, तो उसकी मतलब हमें मोबाइल, अमेजोन, नेटफ्लिक्स वो भी हमें टीवी पर देखने मिले इस तरीके का. तो अभी टाटा स्काई ने एक नया सेट टॉप बॉक्स लॉन्च किया जिसमें आप अमेजोन, नेटफ्लिक्स है, Z5 है, बहुत सारे ऐसे इस तरीके के जो भी प्लेटफॉर्म्स है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, वो आप अपने टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं. मतलब वो डायरेक्ट सेटअप बॉक्स के अंदर ही सारा सब कुछ प्रोवाइड करके दे रहा है. तो इस तरीके का जो हम डेवलप कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं और न्यू प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च करते हैं, उसको हम
न्यू प्रोडक्ट बोलते हैं. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द all concepts of types of product innovation. And if any query, any doubt or any question, you can message me or you can comment. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना. हम नए वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे. तब तक के लिए घर पे रहना एंड सेफ रहना. थैंक यू.